Good morning, everyone, and welcome back to studies after a long gap. Hope you all must have enjoyed your summer vacations, and now it's time to resume our studies. And as we all know that the whole world is facing this situation of pandemic, and that is the reason you are not able to attend your schools, and this the teaching is done through videos and online classes. We will be continuing with this only, and it is uh, your responsibility to make maximum use of this period. And so we when this summer vacation started, at that time we were doing the first chapter in civics, and the name of the chapter is the Indian Constitution. And we have discussed about the functions of the constitution. What are the functions of the constitution, or why do we need a constitution? As we have discussed, the first of all, the meaning of the constitution. What is a constitution? Constitution is a set of rules according to which a country is governed. And then we have also seen that if a country is democratic, it must have a constitution. A democracy cannot work without constitution. A monarchical system can work without constitution, because in monarchy there is no such need of constitution. It can work even without constitution, because the king is all in all, whatever the king says, that becomes the law. So there is no such need, and there is no we can say mandatory need of constitution for a monarchical system. But if it is democracy, then we can't do without constitution. But at the same time, you must also have to understand, about which we have discussed in the previous classes, that only by having a constitution we cannot ensure democracy. है ना, डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, बट ये इसका ये मतलब नहीं कि अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री है. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एंश्योर्स डेमोक्रेसी. दिखावे के लिए कई सारे कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हुए हैं, उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप किया हुआ है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दे आर नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया तो आपके यहाँ डेमोक्रेसी आ जाएगी, है ना. बट अगर आपके यहाँ डेमोक्रेसी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन जरूर चाहिए होता है. बिना कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है, बिकॉज सारे रूल्स तो बनाने पड़ेंगे ना. हाउ पीपल विल रूल ओवर देमसेल्व्स, है ना, क्या क्या तरीका होगा. एवरीथिंग शुड बी रिटन डाउन. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है आज के समय में, इन मॉडर्न पीरियड वी सी दैट ऑलमोस्ट all the constitutions are written, but there are some countries which have no written constitution, like United Kingdom. You want to find any constitution of United Kingdom in a form of a book. Some parts are written, but they are scattered. Like अगर आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो आपको एक बुक के फॉर्म में वो मिल जाएगा, मगर अगर आप यूके का कॉन्स्टिट्यूशन देखने जाएंगे तो यू विल नॉट गेट इट इन अ फॉर्म ऑफ अ बुक. बहुत सारे हैं, जैसे मैग्ना कार्टा है, डिफरेंट जो रूल्स हैं वो अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड मिलेंगे. बहुत सारे अनरिटन रूल्स हैं जो कि ट्रेडिशन बन गया, पॉलिटिकल ट्रेडिशन, वहाँ पर वैसे ही उसको फॉलो किया जा रहा है. तो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यूनाइटेड किंगडम है. बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द need of a constitution or functions of the constitution. Why do we need a constitution? First of all, we have seen that the constitution lays out some ideals, the ideals which form the basis of the kind of country that
वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में उन सारे आइडियल्स को लिखा जाता है जो आइडियल्स बेसिस बनते हैं कंट्री के लिए, कि जिस तरह की कंट्री को हम एस्पायर कर रहे हैं। इफ वी आर एस्पायरिंग फॉर अ कंट्री इन विच पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, देन दैट आइडियल ऑफ इक्वालिटी शुड बी लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स दिस, है ना। इसमें हम लोग बहुत एलाबोरेटली हमने नेपाल का एग्जाम्पल देखा था, हाउ नेपाल which was a constitutional monarchy, it became constitutional monarchy in the year 1990. And then what happened that the king became in the year 2002, that happened that the king became all powerful. उसने कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को मानने से रिफ्यूज कर दिया, प्राइम मिनिस्टर की पावर, पार्लियामेंट को के पावर सबको अपने हाथों में ले लिया, और इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था वो एब्सोल्यूट मोनार्की में चेंज हो जाता है। लेकिन ये दिस एक्ट वाज डन बाय द किंग, बट द पीपल डिड नॉट अप्रूव दिस एक्ट ऑफ द किंग, है ना। लोगों ने इस किंग के इस काम को नहीं एक्सेप्ट किया। लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें हमारी पार्लियामेंट को फिर से आप रीइंस्टेट करिए, फिर से बहाल करिए हमारी पार्लियामेंट को, जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसको हमने इलेक्ट करके भेजा था। ये दिस टाइप ऑफ डिमांड्स वर पुट बाय पीपल। पब्लिक प्रोटेस्ट होने लगा बहुत ज़्यादा। काठमांडू जो नेपाल का कैपिटल है, लाखों लाख लोग वहाँ पर जमा होकर के हर दिन प्रोटेस्ट करते थे। एंड लास्टली द किंग हैज़ टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ द पीपल। और जब किंग ने लोगों के डिमांड को एक्सेप्ट किया, पार्लियामेंट को फिर से उसने रीइंस्टेट कर दिया 2006 में, अप्रैल 2006 में जो किंग ने जिस पावर को ले लिया था उस पावर को उसने वापस कर दिया। और फिर क्या हुआ, अब ये समझ में आया कि नाउ नेपाल नीड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन 1990 में बना था उस कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्की वॉज देयर, है ना, बट मोनार्की वॉज रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन भी था, मोनार्की भी था, जिसलिए हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते। तो मोनार्क से ये एक्सपेक्टेशन था कि ही विल फॉलो द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट व्हाट हैपेंड इन द ईयर 2002 दैट द किंग स्टॉप्ड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो हर कुछ अपने हिसाब से करने लगा। लेकिन फिर लोगों के प्रोटेस्ट के कारण उसको अपने पावर को फिर से वापस छोड़ना पड़ा, है ना, 2006 में। लेकिन अब नाउ नेपाल was in need of a new constitution, because now the aspiration of the people have changed. Earlier people were of the opinion that monarchy should be there, and that is why they have adopted this constitutional monarchy in the year 1990. But now the aspiration of the people are changed. Now people want that there should be no monarchy. नेपाल शुड बिकम अ रिपब्लिक, है ना। तो ये जो हुआ कि नहीं, मोनार्की नहीं रहेगा और वो रिपब्लिक बन जाएगा, तो अब नेपाल को एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हुई, क्योंकि वो आइडियल्स बदल गए। जो लोगों का एस्पिरेशंस था वो चेंज हो गया। तो जब लोगों के एस्पिरेशंस चेंज हुए तो जिन आइडियल्स पे कंट्री को बेस होना था वो आइडियल्स बदल गए, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलना पड़ा और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का बनता है 2015 में, जिसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने एक और फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, जैसे कि अगर कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें कैसे डिवीजन ऑफ पावर होगा, किसके कितने पावर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये जो मेन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, किसके क्या फंक्शंस होंगे, ये सारा कुछ उसमें डिफाइन होता है। तो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उसको पावर देना, है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है। एंड देन अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो पुट्स some limits on the powers of the government,
constitution puts limit on the powers of the political leaders, because if the constitution gives them unlimited power, then they will start misusing their power. You have been explained about this through an example, like आपके क्लास मॉनिटर, अगर क्लास टीचर उसको एब्सोल्यूट पावर दे दिया कि हम जा रहे हैं क्लास से एंड यू माइंड द क्लास, एंड जो भी आपकी बात नहीं मानेगा उसका नाम हमें देंगे, तो उसमें क्या किया, जो जिसको टीचर ने मॉनिटर बना के गई टीचर, उस बच्चे ने अपने पावर को मिसयूज किया। जिस बच्चे के साथ उसका पर्सनल एनिमोसिटी था, उस बच्चे का उसने झूठी शिकायत की, झूठी कंप्लेन की टीचर से। नतीजा क्या हुआ, जिस बच्चे का उसने झूठा कंप्लेन किया उसको टीचर ने स्कोल्ड किया, उसको पनिशमेंट भी मिला। तो ये क्या है, दिस इज मिसयूज ऑफ पावर। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू पुट लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, और इसलिए हमें फंडामेंटल राइट्स मिला है। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर गिवन फंडामेंटल राइट्स बाय द Constitution, and these fundamental rights cannot be violated by the government. Government इनको violate नहीं कर सकती है, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो हमारे fundamental rights को हमसे छीन ले, है ना। तो these are limitations on the powers of the government. And then we have seen the third most important function of the Constitution is to protect the interest of the minority group in the country. In any country, there is problem of majority and minority, and in this situation, it is the responsibility of the Constitution that it ensure that the minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. जो चीज़ें majority को routinely, मतलब without any effort, the majority is able to get all these things, but the minority, because of being in minority, are not able to gain all these things. So this should not be done. ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें मेजॉरिटी को जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, जो भी फैसिलिटीज, जो भी नीड्स हैं उनके वो पूरे हो रहे हैं जिस तरीके से, उसी तरह से माइनॉरिटीज का भी पूरा होना चाहिए। इसको भी हमने एक एग्जांपल से देखा था, लाइक वी हैव सीन कि कैसे गर्ल्स और बॉयज में डिसाइड हो रहा है कि क्या खेलना है, और बिकॉज बॉयज आर इन मेजोरिटी, सो व्हाट हैपेंस दैट एवरी टाइम द डिसीजन ऑफ द बॉयज आर प्रिवेलिंग, है ना। द डिसीजन और द विशेस ऑफ द गर्ल्स हैव नो वैल्यू बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटी। तो ये सोसाइटी के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसी में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस किया था, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन एंड इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। इंटर कम्युनिटी, दो कम्युनिटीज के बीच में, जैसे हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के कारण जो डोमिनेशन होता है, लाइक अगर मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी एंड हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, देन देयर विल बी डोमिनेशन, देयर मे बी, नॉट विल बी, देयर मे बी डोमिनेशन ऑफ हिंदू कम्युनिटी ओवर द मुस्लिम कम्युनिटी। दिस इज इंटर कम्युनिटी। दो डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में डोमिनेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ नंबर। अब दूसरा जो सिचुएशन है दैट इज इंट्रा कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर में हो रहा है ये डोमिनेशन, लाइक हिंदूज जो है, हिंदू का जो वर्णा सिस्टम है, जो कास्ट सिस्टम है, उसमें क्या होता है, जो जिनको सोसाइटी लोअर कास्ट कहती है, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट होते हैं, उन पर डोमिनेट करता है कौन, अपर कास्ट। तो दिस इज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। इन दोनों से बचाना है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो काम है वो यही है कि इन दोनों तरह के डोमिनेशन से माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है। न तो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन होना चाहिए और ना ही इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन होना चाहिए। एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, हमें अपने आप से बचाना। दिस वाज आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय एन एग्जांपल कि किस तरह से एक जो बच्ची है वो एग्जाम के लिए तैयारी कर रही होती है, बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि टीवी में कुछ उसका प्रोग्राम है, फेवरेट प्रोग्राम है, वो आने जा रहा है। अब वो शी वॉज इन अ ग्रेट डायलेमा व्हाट टू डू। शुड शी वॉच द टीवी प्रोग्राम विच इज हर फेवरेट प्रोग्राम एंड और शुड शी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन विच इज टू बी हेल्ड टुमारो, है ना। तो अब वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी, लेकिन लास्ट में उसने यही डिसाइड किया कि नहीं, मुझे पढ़ना है।
क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है कल। और जब उसने पेपर दिया तो उसे ये समझ में आया कि उसका पढ़ना, उसने जो डिसीजन लिया था वो सही था। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं कंट्री के अंदर जिसमें कि अचानक से जो लीडर्स हैं वो कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाए। जो डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप में चेंज हो सकता है अगर पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा चाहे तो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए भी मेजर्स करता है। क्या करता है? वो ऐसे कुछ फिक्स कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कोई नहीं बदल सकता है। क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर को आपने बदल दिया तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो जाएगा, जो कि नहीं करना है। तो अगर हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जिनको कि पॉपुलर सपोर्ट भी है, people are supporting that political leader and that political leader wants to convert this democracy into dictatorship, it is not possible in a good constitution because constitution इसके लिए सेफ्टी कर देता है कि आप सारा कुछ बदल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, बट कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप नहीं बदल सकते। और ये बेसिक चीजें ही हैं जो कि हमें हमारे इस तरह के जो डेमोक्रेसी को छोड़ के डिक्टेटरशिप की तरफ जाने के जो विचार हैं उस पर रोक लगाता है। दिस इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। ठीक है, दीज आर द फंक्शंस विच वी हैव डिस्कस्ड एंड नाउ वी विल बी कमिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। और हमने इसको भी, इसके बारे में भी जो डिस्कशन था वो स्टार्ट कर दिया था कि हमने 200 सालों तक हम ब्रिटिश रूल के अंदर रहें, कॉलोनियल पावर कॉलोनी बन के रहें, ब्रिटिश कॉलोनी थे हम। एंड हम साथ ही साथ हिस्ट्री में भी हम लोग इस बारे में पूरा डिटेल में हमें पढ़ना है। देयर आर 2 बुक्स इन हिस्ट्री इन योर क्लास, है ना। तो पूरा का पूरा जो इंडिया का नेशनल मूवमेंट है, जो ब्रिटिश रूल को इंडिया से रिमूव करने के लिए जो इंडियंस की तरफ से जो मूवमेंट हुआ, दैट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और उससे आपको सारी बहुत ही मतलब दैट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। तो यहाँ पर आपका जो मेन कंसर्न है वो ये है कि किस तरह से हमारे कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता है। तो जब हमारा ये नेशनल मूवमेंट चल रहा था, व्हेन वी वर इन्वॉल्व इन दिस national movement, at that time our national leaders were planning about free India. How should be the free India? कैसा होना चाहिए फ्री इंडिया? जब ब्रिटिश रूल था, अंडर द ब्रिटिश रूल, the British rule was highly authoritarian. Okay, the British rule was highly अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन का मतलब ये होता है एक ऐसा रूल जहाँ पर जो रूल बनाने, एक ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म जहाँ पर जो रूल बनाने वाले हैं दे आर वेरी मच पावरफुल एंड वॉट एवर रूल दे आर मेकिंग दे आर नॉट concerned about the interest of the common people. They are making rules only according to their own interest, according to their own wishes. They are not at all concerned with the need of the common people. वो सिर्फ अपनी पावर के दम पे रूल कर रहे हैं। They are very much powerful. They are using their power in such a manner that common people are not getting any kind of benefit from that rule. तो इस तरह का अथॉरिटेरियन रूल में हम थे जब ब्रिटिश रूल था। तो जो ब्रिटिश रूल बनाते थे इंडिया के लिए, जो लॉज बनते थे, आई टोल्ड यू इन हिस्ट्री क्लासेस ऑल्सो, जो इंडिया के लिए रूल्स बनते थे वो कौन बनाता था? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनता था। British Parliament used to make rules for Indians, जो कि हमें बिल्कुल भी हमारे हिसाब से नहीं होता था। वो अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बनाते थे।
तो जो इस तरह का रूल हम जिसमें हम रह रहे थे वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। कॉमन पीपल के हिसाब से देखें तो उसमें कुछ भी नहीं होता था जो कॉमन पीपल के लिए बेनिफिशियल हो या उनके किसी भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता नहीं था। तो ये जो इस तरह का रूल का जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ, इस कारण जो हमारे लीडर्स थे वो पूरी तरह से दे वर 100% assured that free India should be a democracy in which everyone will be treated equally. There will be no discrimination among the people, and all the common people will be allowed to participate in the government. The government should be of the people. The government should be for the people. The government should be by the people. This is democracy. So the experience of British rule was highly unjustified. The British rule was highly unjustified, and this experience has played the role for this 100% conviction that the free India should be a democracy. है ना? तो now what was the रिक्वायरमेंट, ये तो हमें पता था। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, जिनके लीडरशिप में नेशनल मूवमेंट हो रहा था, दे वर कंप्लीटली श्योर कि हमें अब डेमोक्रेसी को ही लाना है ना। फ्री इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री ही होगा। एंड जो अब डिसाइड करना था वो ये था कि कैसे इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेटअप किया जाए, हाउ टू सेट अप दिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, how to make the rules that would determine its functioning, the functioning of a democratic government, कैसे उसको अप्लाई करना है, क्या पाना है। we were knowing our goal, हमारा गोल क्या है, हमारा गोल क्या था at the time of political at the time of national movement. Our goal was to achieve freedom, and in free India there will be democracy. तो गोल जो था वो था डेमोक्रेसी। अब दूसरा जो सवाल था वो ये था कि इस गोल को हम कैसे अचीव करें, कैसे डेमोक्रेटिक सेटअप को हम एस्टैब्लिश करें अपनी कंट्री में। एंड फॉर दैट पर्पस what was the requirement, कैसे डेमोक्रेसी आएगी। फॉर द पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, a democracy cannot exist without constitution. So there was need of a constitution, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसमें सारे रूल्स लिखे हुए होंगे, और जो भी रूलर होगा उसको उन सारे रूल्स को मानना पड़ेगा, तो फिर डेमोक्रेटिक सेटअप स्टैब्लिश हो जाएगा। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सेटअप के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखना होगा, है ना। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, हु विल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई एक इंसान तो लिखेगा नहीं कि कोई एक जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख देंगे। ऐसा होगा तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा अगर एक जने कोई लिख दें। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखेंगे वो लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिटन बाय द पीपल, तब तो वो रियल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले कौन लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन इतने सारे लोग कैसे होगा, इतने सारे लोग इंडिया के, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, हाउ विल दे राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए इलेक्शंस होते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके उनसे वो काम कराते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का। तो जो जिनको हमने इलेक्ट किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली जो असेंबली होती है, जो लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं।
कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली था ये क्या है, दिस इज अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। Which is assigned the function of okay. Constituent Assembly, it's a body of representatives of people which is assigned the function of making of constitution, जिसको ये काम दिया गया है कि आपको constitution बनाना है। ठीक है, तो ये इस पर्पस से, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग constitution, this constituent assembly was formed in the year 1946. We got independence in the year 1947, and this the process of constitution making was started in the year 1946 itself. ठीक है, और ये इस समय देखो ऐसा तो नहीं है कि सबको राइट टू वोट मिला हुआ था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो था नहीं। अभी इस बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे अभी क्या है, आज के समय में 18 ईयर्स से अबव के जो भी लोग होते हैं उनको राइट टू वोट मिला होता है ना। हम सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, बट उस समय जो कंडीशन थी ब्रिटिश रूल के अंदर, हमें इस तरह का ये नहीं मिला हुआ था, राइट टू वोट सबको नहीं था। बट हमारे यहाँ प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो प्रिवेल कर रही थी, तो वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने इलेक्ट किया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को। इस बारे में आपको बहुत डिटेल नहीं जाना, यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट कंस्टिट्यूएंट असेंबली होता क्या है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ये होता है बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल विच इज असाइंड द फंक्शन ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हमारा जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 1946 में फॉर्म हुआ, वो टोटली ये नहीं कहा जा सकता है कि उसको लोगों ने 18 साल से ज़्यादा एज के जो इंडियंस थे उन्होंने उसको इलेक्ट किया था, उसके मेंबर्स को, ऐसा नहीं है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड था। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड था। ओके, अभी आपको जहाँ पर फोकस करना है वो ये फोकस करना है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जो काम था, जो फंक्शन उसको असाइन किया गया था, वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, है ना। तो ये आसान काम नहीं था, इट वॉज अ वेरी वेरी टफ जॉब, कीपिंग इन माइंड द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, है ना। वी ऑल नो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, एज यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट इन क्लास 6, है ना। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि इंडिया डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है इंडिया के अंदर, है ना। तो यहाँ जहाँ की इतने सारे डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले, डिफरेंट कल्चर को और डिफरेंट ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले लोग रह रहे हैं, तो ऐसे कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही टफ जॉब था, है ना। और इतना ही नहीं, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ये जो दिसंबर 1946 में ये स्टार्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम, ठीक है। तो दिसंबर 1946 जो स्टार्ट हुआ है, उस समय क्या हुआ था कि वो टाइम ऐसा था कि जो हमारे कंट्री में बहुत ही सिचुएशन ख़राब थी, क्योंकि उस समय क्या था कि जो पाकिस्तान की डिमांड हो रही थी, है ना। और इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री बनने चाहिए रिलीजन के बेसिस पे, ऐसा डिमांड मुस्लिम लीग की तरफ से आया था, है ना, कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो दो अलग अलग नेशंस उनके होने चाहिए, हिंदुओं का इंडिया होगा और मुसलमानों का पाकिस्तान होगा। तो ये इसके कारण कंट्री में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था, है ना। पार्टीशन के पहले से, पार्टीशन तो हमारा
अगस्त 15 अगस्त को जो आज़ादी मिली उसके साथ ही हमारा पार्टीशन भी हुआ है ना। बट ये जो दंगे जो थे जिनको हम राइट कह रहे हैं, वायलेंस कह रहे हैं, ये सब कुछ 1946 से ही स्टार्ट हो गया था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो ये था कि इंडिया की डाइवर्सिटी, और दूसरी जो उस समय की सिचुएशन थी वो बहुत ही एडवर्स सिचुएशन थी। We will continue with this discussion in the next class.